آپ بیسیکلی کہاں کی رہنے والی ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے اپنا نام بتا دیں. ارم نام ہے آپ کا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 30 سال عمر ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی. اچھا. اور بچے آپ کے؟ ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹی اور 2 بیٹے آپ کے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ پیدا کہاں پہ ہوئی؟ یعنی یہ گجرات میں ہی پیدا ہوئی؟ جس جگہ آپ رہتی ہیں وہیں پہ پیدا ہوئی یا پھر کسی اور جگہ پہ پیدا ہوئی اور پھر یہاں آ کے بس؟ ماڈل ٹاؤن میں پیدا ہوئی تھی. اچھا, ماڈل ٹاؤن میں پیدا ہوئی اور پھر یہیں پہ آپ نے رہنا بھی شروع کر دیا؟ نہیں, شادی میری سرگودا میں ہوئی تھی تو یہاں سے شادی کر کے تو ابھی رہائش ادھر کی ہے. ٹھیک ہے. اور شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ذہن میں نہیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 3 بچے. اور عمر کیا ہے بچوں کی؟ ایک تو 14 سال کی بچی ہے. اچھا. 13 سال کا بچہ ہے. اچھا. 1.5 سال کا وقفہ دونوں میں. ٹھیک ہے بھائی میں. ٹھیک ہے. اور اس سے بعد کافی چھوٹا بچہ ہے. اچھا. 2 سال کا ہوا ہے. اچھا. آپ کی اپنی عمر 30 سال ہے اور بچے آپ کے بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ. 16 سال کی تھی میں جب میری شادی ہوئی. اسی کوٹھی میں ہوئی تھی. اچھا. پہلے والی بننے والی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی شادی کا مطلب ہے بڑی جلدی ہو گئی کہ آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں. جب مولوی سے انہوں نے نکاح کروایا تھا نا تو انہوں نے کہا 2 سال عمر بڑا ہے. اچھا. کیونکہ پاکستان میں رول ہے کہ آپ 18 سال کی عمر کے بعد شادی کر سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی. کیا کرتے ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ 8ویں کلاس میں بیٹی ہے اور 3ری کلاس میں بیٹا ہے. اور جو بڑا بچہ ہے آپ کا جو 14 سال کا ہے, بیٹی ہے وہ جو 8ویں کلاس میں, اور جو پھر اس سے چھوٹا بچہ ہے وہ 3rd کلاس میں, اور تیسرا آپ کا بچہ ویسے 2 سال کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ سارے بچے جو ہیں دونوں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں جو گھر کے قریب ہی ہے کہیں پہ؟ نہیں, یہ جو ہے نا صاحب. اچھا, وہاں پہ پڑھتے ہیں. اور وہاں پہ ان کو کوئی چھوڑنے جاتا ہے یا وہ خود ہی چلے جاتے ہیں؟ نہیں, چھوڑنے جاتا ہے. اور واپس بھی لے کے آتے ہیں؟ لے کر بھی آتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. کس سے زیادہ پیار زندگی میں کرتی ہیں؟ بچوں سے, پیرنٹس سے, میاں سے, بہن بھائیوں سے؟ اپنے میاں سے بھی کرتی ہوں, بچوں سے بھی کرتی ہوں, ساسو ماں سے بھی کرتی ہوں. انہوں کا کہنا میں نے کبھی نہیں ٹالا. میں کہتی ہوں کہ اگر وہ یہ ماں ہے نا وہ بھی ماں ہے. کہیں بولنا پڑ جو بول لیتے ہیں, یعنی چھوٹا موٹا ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے, لیکن میں انہوں کی عزت بہت کرتی ہوں. ٹھیک. اگر وہ انہوں نے پیسے اپنے بچے سے مانگنے ہو نا وہ مجھ سے مانگتی ہیں, بے جھجک ہو کر مانگتی ہیں. تو میں بھی یہی کہتی ہوں ماں جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے ہی مانگتی, کسی اور سے نہیں مانگتی. تو مجھے بتائیں کہ آپ جیسے کام کرنے جاتی ہیں تو کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ 3 گھر پہ. آج ہی ایک لگایا, وہ بھی مجھے مجبوری پڑ گئی تھی اس لیے. اچھا, تو 3 گھروں میں بھی آپ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں. جی. آپ جب کام کرنے جاتی ہیں تو پیچھے گھر میں کون لک آفٹر کرتا ہے, بچوں کی, ساس کی؟ ابھی تو بیٹا ہے. ساسو ماں تو ہے سرگودا میں, شادی میری ادھر ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ابھی ادھر. تو ابھی آپ اکیلی رہتی ہیں بچوں کے ساتھ اور میاں کے ساتھ یہاں پہ؟ ٹھیک ٹھیک. اور جو بیٹا ہے وہی دونوں بہن بھائیوں کو آپ کے واپسی تک جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور آپ پورا دن وہاں پہ نہیں رہتی ہیں, آپ کچھ گھنٹوں کے لیے کام کرنے جاتی ہیں؟ کچھ گھنٹوں کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات مجھے بتائیں کہ زندگی میں جو ابھی تک آپ نے 30 سال کی گزاری ہے, بہترین لمحے کیا تھے آپ کے لیے جس میں آپ کو لگتا تھا کہ آپ بہت خوش ہوئیں ان لمحات کے اندر؟ کوئی ایسا نہیں آیا. زندگی میں جب سے بڑی دکھ ہی دکھ دیکھا, شادی شدہ ہوئے وہی تھے. یہ ہے کہ پہلے تو امی جان نے منگنی کر دی, پھر اس منگنی والے کو پسند کرنے لگا پڑی, وہی لمحے تھے کچھ بس. اچھا. اس سے زیادہ تو آگے گئی تو آگے والے مسائل جو تھے وہ نہیں ختم ہوئے, پیچھے تو وہ بھی نہیں ختم ہوئے. یہی ہے, ٹینشن نہیں دیکھی ہیں ہم نے تو. ٹھیک ٹھیک. اچھا, آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ شادی سے پہلے بھی آپ ماڈل ٹاؤن میں رہتی تھیں اور یہیں پہ آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کے پیرنٹس میں سے بھی کوئی, جیسے آپ کی امی بھی کیا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں؟ شروع سے کام ہی کیا انہوں نے, ابھی بھی وہ کام ہی کرتی ہیں.
ठीक ठीक। और बाकी बहन भाई आपके क्या करते बहन हैं? भाई जो हैं अपने अपने घरों वाले हैं, बच्चे हैं, उनको अपना खुद घर चलाते हैं वो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ज़िंदगी में कौन से ऐसे जो दिन थे जिसमें आपको लगता था कि मसले ही बड़े हैं, ये दौर है जिसके अंदर मैंने बड़े मसलों को भुगता? ये पिछले साल के रोज़ों में रोते गुजारा मैंने रोज़ों में। पहले के अपनी मर्जी से मैंने सासू माँ से इजाज़त ली, मैंने ना अब इधर नहीं रहना, इसलिए नहीं रहना कि वहाँ से ना जो चाचे थे ना मेरे ससुर के भाई, वो सब इकट्ठे रहते, बड़ी फैमिली थी। ये है कि वो खाना पीना उनका अलग था, लेकिन ये है कि घर में जो है ना माहौल नहीं था ठीक, वो मुझे अच्छा नहीं था लगा। और मैंने अपनी सासू माँ से इजाज़त ली, मैंने कहा मैंने शिफ्ट हो जाना, मैंने इधर नहीं रहना, जैसे जैसे ये देखेंगे ना मेरे भी बच्चे वो भी ऐसे ही करेंगे, मैंने नहीं रहना। उनके ज़्यादा ना जो है ना मिजाज उनके ये थे कि कभी किसी लड़की को पसंद कर लिया, कभी किसी को, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो चचा लोग हैं। हाँ ठीक। बाहर में, घर में अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे ज़हन में बैठ गया था, मैं कहा नहीं, जो घर बाहर वालों को नहीं ना देखते वो घर वालों को भी नहीं। ठीक। मैंने अपने बच्चे वहाँ से निकाले, यहाँ आई और यहाँ एक घर लिया, वहाँ रही। पहले मामू के पास थी, उसके मामू की बीवी चली गई है, तो उसके पास उसके ही मैंने थोड़ी सी रिहाइश, मैंने कहा कुछ दिन मैं आपके बच्चों को भी संभालूंगी और आपको भी, आप मेरे पास है, आपकी तो बेगम नहीं है, वो चली गई है छोड़ के बच्चों को। तो वो मेरे साथ उसने नहीं अपना मतलब है, उसको अच्छा नहीं लगा, वो अपने बच्चे अपनी बहन के पास ले गया था। ठीक। उसके बाद मैंने अकेला रहना शुरू, फिर मैंने काम ढूंढा। 1 महीना रोज़ों में मैंने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह चलो तेरे दिए पर खुश हैं। एक्सीडेंट भी हो गया मेरे टांग ये ना सारी ये पड़ गया था मेरे टांग पर, तो मैंने कहा रो रो के रोज़ों में गुजारा, और अल्लाह मियाँ ने ऐसी मेरी सुनी कि ये है कि घर भी अच्छा मिल गया और बच्चों को रैश भी अच्छी लगी। मेरे बच्चे पहले फैमिली के ही ले हुए थे, वो अकेले, अल्लाह का शुक्र है वो रोना मेरे काम आ गए। ठीक ठीक। यानी पिछले साल रमज़ान की अगर बात करें तो आप ये कह रही हैं कि नहीं, आपको मुश्किलात तो रमज़ान मैंने गुजारा है, वो खुशी में गुजारा है। उससे पिछले वाला रमज़ान जो है ना मैंने वो मैंने रोते, यानी उसमें माली मुश्किलात काफ़ी थी। हाँ काफ़ी थे। ये जो है ये वाला रमज़ान तो मैंने बहुत खुशी से गुजारा, अपने बच्चों में हंस खेल करो, रमज़ान रखे भी हैं, रोज़े रखे हैं मैंने भी, बच्चों ने भी रखे हैं, जितने अल्लाह की तौफीक थी रखे हैं, मैंने काम भी किया है। ठीक ठीक। अच्छा, आपका जो ख़ानदान है वो अपने उसी इलाके में ही रहता है जहाँ पे आपकी सास हैं? हाँ, बाकी जो फैमिली है वो सरगोदा साइड पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप लोग इतने दूर रहते हैं तो फिर उनसे मिलने के लिए कब कब जाना आपका वहाँ पे होता है, और जब जाती हैं तो कितनी देर रहती हैं? और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना हम 2-3 दफ़ा ईदों पर गए हैं, उसके बाद एक दफ़ा सासू माँ का पता लेने गए हैं, अब भी जाना है। ठीक। 15 दिन के बाद। यानी इन 2 सालों में आपने कोई 3 चक्कर वहाँ पे हाँ लगाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाए हैं। ठीक। अच्छा, आपके फैमिली जो है उसमें जैसे आप बता रही हैं कि आप और आपके हस्बैंड होते हैं और साथ में बच्चे होते हैं, हाँ। तो आपकी फैमिली में काम कौन कौन करता है? जैसे आप काम करती हैं तो हस्बैंड भी काम करते हैं? हाँ, वो भी मेरा साथ दे देते हैं, कभी कभी कहते हैं ना वो काम पर गई हो, या कभी कपड़े धो दिए बेटे के साथ मिलकर, कभी शाम को चाय बना ली, बच्चे का दूध, वो रात को मुझे तो उठाते नहीं हैं, बच्चे का दूध वो ही हैंडल करते हैं। हाँ, बच्चे सब कुछ सीखा हुआ है, पैम्पर लगाने की भी जरूरत नहीं मुझे पड़ती, वो खुद ही बता देते। ठीक ठीक। कोई बात नहीं, साथ साथ लेती जाए। आपके हस्बैंड काम काज करते हैं कुछ कि नहीं? हाँ, करते हैं। क्या काम करते हैं? यहाँ लगे हुए हैं पीछे। ठीक, यानी ये जो घर बन रहा है पीछे, हाँ, वहाँ पे वो मजदूरी करते हैं। ठीक। और जैसे कोरोना आजकल है तो उसमें काम काज कोई मुतासर हुआ आपके मियाँ का? पहले जो 3 महीने गुजरे वो तो घर में ही गुजारे। ये कोई मदद करने वाला चला जाता था, कोई चला गया, लेकिन ये है कि इतना ज्यादा नहीं, 1500 एक दफा किसी ने दिया था, या
सौदा मेरा मदीने से आया था, वो भी अम्मी के वाकफ थे, ठीक, उन्होंने भेजा था वो। ये है कि महीने का सौदा था, हैंडल हो गया था। और बाकी जो दिन थे वो फिर सौदे वगैरह को कैसे मैनेज किया आप लोग? वो ही अम्मी लेकर आती थी, वो चली गया। तो पहली बात है कि काम भी मैंने भी छोड़ दिया था उस दिन में, वैसे ही लोग बहुत डरे हुए। हाँ, तो लोग उसकी वजह से आपका भी काम मुतासर हुआ। हाँ। कि लोगों ने कहा कि आप घर में रहें। हाँ, जिनके किराया भी देना होता था 6,000, और मोटरसाइकिल की 3,000 किश्त भी, और बच्चों की 2,000 ट्यूशन भी। बच्चों को तो छुड़ाना पड़ा। तो ये है कि हमने वो तो किराया तो लेट नहीं किया, वो तो उन्होंने लिया ही लिया है। हमने बोला ना आप किराया ना लें, आपने वो कह रहे हैं टीवी पर कह रहे थे वे गरीबों से किराया मत लें। वो कह रहे थे हमारी कौन सी डिमांड पूरी की है उन्होंने इमरान खान ने, जो हम उनकी पूरी करें। ठीक। सो किराया आपसे उन्होंने लिया था, ये थोड़ा लेट ले लिया था, ले लिया था उन्होंने। जिंदगी में क्या करना चाहती हैं आप? जिंदगी में बनना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, न पढ़ भी हूँ। अगर मैं जितना काम कर सकती हूँ ना उतना ही सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कि दुकान डाल लूँ, एक बुटीक वगैरह, तो कपड़ा, ये सोच है मेरी। तो अगर आगे से हालात जो है ना, काम करके भी हालात घर के बुरे, उसकी वजह से कुछ ही नहीं कर पाती। आपके नजदीक कामयाबी क्या है? किसको कामयाब होना कहते हैं? कामयाबी यही है, काम बढ़ाएंगे तो कामयाबी यही है, और तो कोई कामयाबी। क्या ज्यादा पैसे आना कामयाबी है? हाँ। या घर के हालात बेहतर होना कामयाबी है? या ताल्लुकात घर के हालात होना भी कामयाबी है, और जो है ना घर का खर्चा चलाने के भी कामयाबी। जैसे जैसे मतलब पैसे आएंगे घर में, खर्चा भी तब भी चलेगा। अब ये देखें 3 घर का काम, अभी 3 दिन हो गया मैंने वो दूसरा काम शुरू किया, वो मुझे किसी ने डिमांड किया, वैसे मैं कर नहीं सकती कि वैसे में ये रीढ़ की हड्डी है ना वो दर्द करती है ऑपरेशन की वजह से। तो सर्दियों में पता है आपको ये मसला बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल में थी। आप जिस घरों में काम करती हैं वहाँ और भी खवातीन साथ में काम करती हैं, या एक एक ही बस आप ही हैं जो? एक घर में तो खवातीन करती है काम, वो सुबह का काम करके चली जाती है, ऊपर वाला मैं करती हूँ। तो बर्तन वगैरह धो ले, और ऊपर रोटियां बना ली, आटा गूंद लिया, सब्जी बना ली, हंडी कभी बना ली, कभी उन्होंने जो जो बोलते हैं वो कर लेती। ऊपर वाले काम है, लेकिन ये मेन सफाई नहीं है। जब तीसरा घर लगा हुआ उनकी मेन सफाई है सिर्फ। ठीक है। तो ये आंटी हैं, एक दिन काम करवाती हैं, कभी ऊपर का करवा लिया, कभी सेन का करवा लिया, ये करवाती हैं। 6-7 दिन मुझे नहीं बोलती, एक बर्तन रोजाना धोती है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, वो अकेली है ना इसलिए। हाँ। अच्छा, आम तौर पर काम के दिनों में कौन सी बात सबसे ज्यादा तंग करती है आपको? खुशियाँ नहीं जब मिलती, ये और कुछ भी नहीं। यही कहते हैं चलो अल्लाह ठीक ही करेगा, जो कुछ करेगा, आगे वाली जो जिंदगी है अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ठीक करेगा। तो अगर ख्वाहिशें जानू ना, ख्वाहिशें ये हैं कि मेरी बच्ची गवर्नमेंट में वैसे पढ़ती है, पढ़ाई में भी थोड़ी सी कमज़ोर है, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जितना चाहें, मैं जितनी कर सकूँ वो पढ़ें। तो मैं अपनी बच्ची को वकील नहीं बनाना चाहती। वकील बनाना चाहती हैं? हाँ। लेकिन पढ़ाई देखिए ना उसकी, नहीं मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि वो कमजोर है? जो है ना वो कम है, लेकिन आपका दिल चाहता है कि वो पढ़े और वो वकील बनने की तरफ जाए। अच्छा, आमतौर पे काम के जो दिन है उनमें कौन सी बात है जिससे आपको हौसला अफजाई मिलती है, हौसला मिलता है आपको? जो रूटीन के काम के आपके दिन है उसके दौरान किस बात से हौसला मिलता है? किसी बात से भी नहीं, हौसला तो अपनी जिंदगी को खुद ही देना पड़ता है, क्या करिए। यहाँ अल्लाह से हौसला लेना और किसी से नहीं। जब मुझे खुद मैं नाराज होती हूँ ना, ये घर में नहीं है, ये नहीं है, फिर ये सोचती हूँ चलो अल्लाह करेगा, छोड़ो इससे, अल्लाह जो भी हो ना उसकी बेहतरी होगी, वो अच्छा ही करेंगे। हाँ, ये बस।
काम आम तौर पर आप कहाँ पे करती हैं? यहाँ ही मॉडर्न टाउन में। मॉडल टाउन में लोगों के घरों के अंदर? हाँ जी। अच्छा, जब काम नहीं होता जिस दिन, तो उस दिन क्या करती हैं फिर, जिस दिन घर काम में पे काम नहीं काज। जाना होता? घर में ही काम काज नहीं मुकता। कभी बिस्तर के उछाटे उतार के धो लो, कभी घर का ये काम कर लो, कभी बच्चों के कपड़े धो लो। वो सारा दिन वहां से छुट्टी का घर में ही गुजर जाती है, काम करती गुजर जाती है। कभी ऐसा हुआ कि काम भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं, तो फिर कैसे मैनेज करती हैं, फिर गुजारा कैसे होता है? अल्लाह पर छोड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं, वही गुजारेगा जो भी टाइम है। कभी अम्मी होती हैं साथ, कुछ ना हो घर में तो वो कहती हैं ये लो मुझसे पैसे आप ले आओ, वो भी काम ही करती हैं। वो कौन सा, हाँ वो कोई यही बस। आप किराए के घर में रहती हैं जहाँ पे किराया आपको देना पड़ता है मंथली? पहले किराए के घर में रहती थी, अभी ना को काम कर कर वैसे ही रहती हूँ। यानी अब यहाँ पे किराया आपको नहीं देना पड़ता? हाँ ठीक। अच्छा, पहले आप यहाँ पे रहती थी तो आपके साथ और भी लोग थे? वो हम नहीं थे, वो कोई और था। अच्छा, आप अभी शिफ्ट हुए यहाँ पे? हाँ, कौन वो हमारी थी। हाँ। लेकिन वो रिश्तेदार वगैरह भी नहीं थे। तो क्योंकि वो काफी बड़ी फैमिली थी। हाँ, जो यहाँ पे थी 2 फैमिली। हाँ, तो वो फिर चले गए यहाँ से। अच्छा, फर्ज करें कि अगर कोई जिन मिल जाए आपको, तो कौन सी आपकी 3 ख्वाहिशात हैं जो कि आप उस जिन से पूरी करवाना चाहेंगी? एक तो ये है कि कारोबार अच्छा चले, और एक ये है हमारी जिंदगी में खुशियाँ रहें। ये 2 हो गई हैं, तीसरी कौन सी? ये बच्चे भी खुश रहें, बस यही। कि काम, घर खुश है, घर वाले खुश हैं, घर का हालात ठीक है, सब भी ठीक है। अगर बीमार हो तो क्या करते हैं? डॉक्टर पर गई, दवाई ली, आराम। घर में कोई और भी बीमार हो गया तो यही सारा प्रोसीजर? यही कुछ करेंगे। अम्मी जान होती हैं, वो खुद ही दवाई ले आती है। अभी तो मेरी ये कमर सब दर्द करती है, काम भी करती है, ये भी चीज दर्द करती है। तो पैसों की वजह से नहीं जा पाई, दवाई नहीं ले पाई मैं। घर के अखराजात नहीं पूरे होते, बच्चों की कापियाँ काफी, मतलब बेशक वो गवर्नमेंट में पढ़ते हैं ना, फिर भी खर्चे बहुत ज्यादा। 1 साल की वो सिर्फ किताबें देते हैं, तुझे खुद ही खर्चे। कि हमने बच्चों को वर्दी भी नहीं लेकर दी। हाँ, जब ये पूरा ये इकट्ठा भी सौदा डाले ना, वो खत्म होते होते जो इकट्ठे करेंगे ना, वो फिर सौदा आ जाएगा। वो ऐसा होता है। अच्छा, खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आप खरीदती हैं अपनी, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं? सब्जी हो गई, कोई और खाने पीने की चीज़ हो गई? ये तो दाल ले से अभी तो लेकर आते हैं। अभी तो इस्लाम नगर से ले, पहले हमारा उधर सौदा लगा हुआ था, ठीक, वहाँ ही रहते थे। ठीक, उधर से लेकर आते हैं। ठीक, उधर से मना हदार लगाया हुआ है। जब वो ले आते हैं इकट्ठा, उनको दे देते हैं। ठीक, यानी महीने का आप सौदा इकट्ठा ले आते हैं? नहीं, या 15 दिन का? हमने हिसाब रखा हुआ जुम्मे के जुम्मे। ठीक है, यानी हफ्ते के हफ्ते आप सौदा ले आते हैं और उसके फिर पैसे दे देते हैं। ठीक। आमतौर पे लोग जो हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ कभी किसी दूसरे शहर तफरीह करने जाते हैं, आप कैसे तफरीह करती हैं? कभी नहीं की, हमने घर के मसला नहीं मुके कभी नहीं की। कभी बच्चों को किसी पार्क में नहीं लेके नहीं गई? लेकर गई। जब से इधर आई में मेरे बच्चे कहते भी रहे हैं नहीं लेकर गई। लेकिन देखे ना, अगर लेकर जाऊंगी ना तो ले तो जाऊंगी, जब बच्चे उधर से देखेंगे, कोई चीज लेंगे, झूले लेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है जरा बच्चे को भी हैंडल करना। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि ये जो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने भी बात की कि दूसरे शहरों में जाते हैं और तफरीह करने के लिए जाते हैं, बाज़-औक़ात लड़कियां अकेली भी जाती हैं, बाज़-औक़ात लड़कियां अपने हस्बैंड्स और बच्चों के साथ भी जाती हैं। आपको अगर मौका मिले तो आप किस जगह जाना चाहेंगी
اور کس طرح کی چھٹیاں وہ گزارنا چاہیں گی؟ اگر آپ کو 3 چھٹیاں ملے یا 5 چھٹیاں ملے تو کس طرح چھٹیاں وہ گزارنا چاہیں گی؟ پاکستان میں کہ جہاں آپ کا دل چاہے. میں تو مکہ مدینہ میں جاؤں گی. اچھا, اللہ کے گھر میں جاؤں گی. ٹھیک. ہاں, اگر چھوٹی مطلب خواہش ہے نا, ہاں, تو یا کہ بچوں کو یا پارک میں لے جاؤں گی یا ایسے 1-2 دن کے لیے. وہ 1-2 دن تو اسی چیز میں گزرتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا, لوگ مری جاتے ہیں, جیسے آج کل سنو پڑی ہے, وہاں پہ برف پڑی ہے, تو لوگ کی برف دیکھنے خواہش ہے لیکن مری گئی نہیں ہوں ابھی. امی ہو کر آ گیا, بھائی بھی سب گئے ہوئے, میں نہیں گئی. اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ مری جائیں, ٹھیک, اکیلی جائیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ, جو کہ گروپ سا ایک بنا ہوتا ہے, تو کیسے اپنے وہ 3 دن گزارنا چاہیں گی مری میں؟ کہ بچے بھی ادھر ہیں, میاں بھی ادھر ہے, کیا کرنا چاہیں گی؟ کون سی خواہش ہے جو ادھر پوری کرنا چاہیں گی؟ کوئی خواہش نہیں ہے, بس دیکھنے کی خواہش ہے, دیکھا نہیں. آپ گھومنا چاہیں گی وہاں پہ؟ ہاں, گھومیں گے. اگر جائیں گے تو پھر گھومیں گے, آگے پیچھے دیکھیں گے یہ کون سی جگہ ہے, یہ خوبصورت ہے, یہ خوبصورت ہے, تو وہاں جائیں گے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ رش کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں پہ تھوڑا اکیلا پن انہیں ملے. آپ کو کس طرح کی جگہیں زیادہ؟ ہم شروع سے فیملی میں بھی رہے ہوئے ہیں, اور فیملیوں میں بھی خوش رہتے ہیں. شادی وغیرہ ہو, وہاں پتہ کافی لوگ ہوتے ہیں خوش ہی رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اکیلا پن مجھے نہیں پسند, میری بہن چھوٹی کو پسند. اچھا, وہ کہتی ہے میں اکیلی رہوں, میں کسی سے. آپ کو ذرا ہلا گلا جو ہے وہ زیادہ پسند؟ ہاں. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اور طیبہ کے کہنے پہ آپ جو ہیں وہ اس کے ساتھ آ گئیں, تو بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اب ابھی بیٹھے